एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए। નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ। નિર્જલા એકાદશીની હાર્દિક શુભકામનાઓ। ધોળકિયા સ્કૂલ દ્વારા પ્રસ્તુત છે કાર્યક્રમ ધન્ય એકાદશી। આ કાર્યક્રમમાં શાસ્ત્રોક્ત કથા સુપ્રસિદ્ધ વક્તાઓ દ્વારા તથા નૃત્ય કલા પ્રસ્તુત થશે। આ નૃત્ય કલામાં ભાગ લેશે શેદાણી યશવી, સાક્ષી પરીખ, ત્વરા માકડ તથા પંજરી ખંડેરિયા। निर्मला स्कूल माथी 11मा धोरणमां धोळकिया स्कूल में प्रवेश लेनार अमारी आ विद्यार्थी बहनों आजे माध्यम बनशे एकादशी ने भक्ति सभर बनाववा। Students from Nirmala School who has taken admission into Dhorakia School in grade 11 are going to be medium to make this Ekadashi devotional. भरी भरी मटकी जलसो भरी भरी मटकी जलसो चल चल कहे डगर चली पग 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 ध्वनि सुन चौंक पड़ी कहीं कहीं मोरी बाह गई भरी भरी मटके जलसो चल चल कहे डगर चली देखो डगर चली देखो डगर चली। अचरा सर सर सरसों सर को अचरा सर सर सरसों सर को कर 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 चूड़ियां करती कर 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 चूड़ियां करके अचरा सर सर सरसों सर को कर 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 चूड़ियां करती तड़ 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 मटकी चटके झर 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 मैं भीज गई भरी भरी मटकी जलसो चल चल कहे डगर चली दिन दा दा तीना दिन दा दा तीना ता दा ता दा कदे कदे तक तक कदे ता तक तक कदे तक तक कदे ता 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 के ता कदे दीना कदे दीना कदे दीना कदे दीना कदे दीना दीना तक 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 दीना 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 तक 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 देखते तक देखते ता 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 धा 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 सनना 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 कर पवन चली अंग अंग भीजत सिहर गई अंग अंग भीजत सिहर गई हंसी 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 सब परिहास करी नित नित छेड़त लाज गई नित नित छेड़त लाज गई नाना करी मैं हार गई ब्रज श्याम न तो से मोर बनी ना तो से बनी भरी भरी
મનુ મહારાજના એક દીકરાનું નામ છે નાભાગ. નાભાગને ત્યાં થયા નભગ, પિતૃભક્ત હતા, અને એમને ત્યાં આગળ જતા એને જે દીકરો થયો એનું નામ છે અમરીશ. અમરીશ રાજાએ એકાદશીના વ્રત કર્યા છે. વ્રતમાં નિષ્ઠા રાખજો, એકાદશીના વ્રત કરજો, ભલે તમે ફરાળ વાળા કરજો પણ કરજો. લીલા નાળિયેર જેટલું ફરાળ કરજો પણ ભલે કરો પણ તમે કરજો એકાદશી. પુરાણોમાં લખ્યું છે કે એકાદશીના દિવસે જે માણસ અનાજ ખાય છે એ અનાજ નથી ખાતો, એ સ્વયં પોતે પાપને ખાય છે. અને જે કાંઈ વ્રત કરો ને એમાં નિષ્ઠા રાખજો બાપ. નિષ્ઠા વગરનું વ્રત તમને ફળ ના આપી શકે. અને એકાદશીની નિષ્ઠા તો શું, ભગવાન શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહારાજની એકાદશીના દિવસે વલ્લભાચાર્ય મહારાજ આચાર્ય ચરણ જગન્નાથપુરીમાં ગયા. અને જગન્નાથપુરીમાં ભગવાનના દર્શન કરતા હતા અને એ સમયે એના હાથમાં પ્રસાદ આવ્યો. હવે ભગવાન જગન્નાથપુરીમાં જે પ્રસાદ થાય છે ભગવાન જગન્નાથનો, એ પ્રસાદ ચોખાનો હોય છે. માલપુવા ચોખાનો પ્રસાદ. હવે એકાદશીના દિવસે તો અનાજ ખાવાની ના પાડી છે. વલ્લભાચાર્ય મહારાજે વિચાર કર્યો આ તો પ્રસાદ છે, અને ના કેમ પાડવી, પ્રસાદનો અનાદર ન કરાય. એટલે એને પ્રસાદ હાથમાં લીધો અને પ્રસાદને હાથમાં લીધા પછી વિચાર કર્યો જો ખાઈશ તો આજે એકાદશી છે, હવે કરવું શું? તમે એકાદશીની નિષ્ઠા તો જુઓ નહીં. એને એકાદશીના દિવસે હાથમાં આવેલો ભગવાનનો પ્રસાદ મોઢામાં ન મૂક્યો, પણ હાથમાં આવેલા પ્રસાદને જોઈ અને સામે ભગવાનની મૂર્તિ સામે જોતા જોતા પ્રસાદના એટલા વખાણ કર્યા કે હે ભગવાન, આજ કેટલો ભાગ્યશાળી બન્યો કે તમારો પ્રસાદ મારા હાથમાં આવ્યો. આ પ્રસાદને ખાઈશ તો મારા પાપ બળી જશે, મારું જીવન ધન્ય બની જશે. આમ 11ની આખી રાત્રિનો સમય એને પ્રસાદના વખાણ કરવામાં અને કરવામાં ગાળ્યો. જાગરણ કર્યું, ભગવાનનું જપ કર્યું, તપ કર્યું. આમ કરતા કરતા દ્વાદશીનો દિવસ આવ્યો ત્યારે ભગવાનનો પ્રસાદ મોઢામાં મૂક્યો. આટલી એકાદશીની નિષ્ઠા હશે ત્યારે પરમાત્મા તમને લેવા આવશે વાલા. એમને ભગવાન નહીં મળે. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. एकादशी एकादशी करिए तो व्रज सुख पाएंगे. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. एकादशी एकादशी करिए तो व्रज सुख पाएंगे. મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે, मारी एकादशीનું વ્રત કરવું છે. હે મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે. મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે. મારે વ્રજ ભૂમિમાં વસવું છે, મારે વ્રજ ભૂમિમાં વસવું છે. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. एकादशी एकादशी करिए तो व्रज सुख पाएंगे. હે મારે ગંગા ઘાટ જાવું છે, મારી ગંગા ઘાટે જાવું છે. હે મારે જમુનાજીમાં નાવું છે. મારી જમુનાજીમાં નાવું છે. મારે ભવસાગર તરી
भागा मानाऊं छे मारी चंद्र भागा मानाऊं छे मारे विठ्ठल रायने रखवा छे मारे विठ्ठल रायने रखवा छे धन एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पामिए एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पाएंगे मारे द्वारिकापुरी माँ जाऊं छे मारी द्वारिकापुरी माँ जाऊं छे मारे गोमती जी मानाऊं छे मारी गोमती जी मानाऊं छे मारे रण छोड़ रायनी रखवा छे मारे रण छोड़ रायनी रखवा छे धन एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पामिए एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पाएंगे जेणे एकादशी ना व्रत कीधा छे एकादशी ना व्रत कीधा छे तेना पांच पदार्थ सीधा छे तेना पांच पदार्थ सीधा छे એને પ્રભુએ પોતાના કરી લીધા છે એને પ્રભુએ પોતાના કરી લીધા છે ધન એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पाएंगे शतशृंगा जंगल में रहने वाले महाराज पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती एवं माधी। कुंती को युधिष्ठिर नाम का पुत्र था। युधिष्ठिर जिसकी भविष्य में धर्म का पालन करने वाले धर्मात्मा के नाम से ही पहचान होने वाली थी। किस चिंता में खोए हैं महाराज? कितना सुंदर पुत्र है। बड़ा होकर ये पराक्रमी योद्धा बनेगा, लेकिन युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए हमें और एक शक्तिशाली पुत्र चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं मुनि दुर्वास जी के आशीर्वाद के अनुसार किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। तुम पवन देव की प्रार्थना करो और उनसे हमारे लिए एक शक्तिशाली पुत्र मांग लो। अवश्य महाराज। जरा युधिष्ठिर की ओर देखिए। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूँ जो अत्यंत शक्तिशाली होगा।
भीम राजा पांडु का सबसे अधिक प्रिय पुत्र था। अर्जुन, सहदेव व नकुल के संग वो बड़ा होने लगा। उन सब ने महर्षि कश्यप से वेदों की शिक्षा ग्रहण की और उसमें वे माहिर हो गए। उनके साथ साथ उन्होंने शस्त्र विद्या भी सीख ली। भीम तो गदा युद्ध में अब प्रवीण हो गया था। निर्जला एकादशी है, इसके महत्व का वर्णन करते हुए शास्त्र बताते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में शील व्यासदेव और भीमसेन का एक संवाद मिलता है। वैसे तो एकादशियों के बारे में पद्म पुराण में भी वर्णन है, तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि एक बार पांडुपुत्र भीमसेन पितामह शील व्यासदेव के पास पहुंचे और कहा कि हे पितामह व्यासदेव जी, सभी लोग जितने भी मेरे परिवार में हैं, कुंती माता, द्रौपदी, मेरे तात, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी व्रत करते हैं एकादशी का, लेकिन मैं एकादशी का उपवास नहीं कर सकता हूँ, जो कि वेदों का आदेश है, क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। मैं सभी नियमानुसार भगवान कृष्ण की उपासना कर सकता हूँ, पूजा करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा, लेकिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। कृपया करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, इस विषय में आप मुझे बताइए। अगर कोई आप मुझे इस बारे में ज्ञान प्रदान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। भीमसेन की बात सुनकर के व्यासदेव जी बोलते हैं कि हे भीम, अगर तुम नरक जाना चाहते हो तो तुमको एकादशी का व्रत त्याग देना चाहिए, अन्यथा वर्ष में आने वाली 24 एकादशी और जो अधिक मास आता है उस वर्ष में 26 एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करना ही चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति नरक जाने का भाव रखता हो कि चलो नरक चले जाएंगे, तो वो फिर एकादशी छोड़ सकता है, लेकिन 24 एकादशियों में व्रत रखना ये व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, अगर वो भगवत कृपा चाहता है, भगवान की भक्ति चाहता है और नरक यातना से बचना चाहता है। तो इस बारे में भीम ने पूछा कि प्रभु व्यासदेव पितामह, आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई व्रत बता दीजिए, कोई एक व्रत जिसको करने से मुझे पूरे वर्ष व्रत करने का फल मिल जाए। व्यासदेव जी कहते हैं ठीक है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष अश्वा मिथुन राशि में आए,
उस समय एकादशी को निर्जल एकादशी कहते हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आचमन जो करते हैं भगवान की सेवा में, उसमें राई के बराबर, जितना राई का साइज होता है उतना जल से कम अगर हमने किया तो आचमन ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जल इस्तेमाल कर लिया राई के दाने से बराबर, तो फिर हमें मदिरा पान करने का पाप लगता है। एकादशी में कुछ भी नहीं खाया जाता है, एकादशी वाले दिन अन्न वर्जित होता है, पर इस एकादशी में जल भी वर्जित है। एकादशी किस दिन प्रारंभ होती है? सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन तक 24 घंटे, अगले दिन के सूर्य उदय तक व्यक्ति को व्रत करना है, जिसमें अन्न नहीं लेना है, साथ में जल भी नहीं लेना है। तो इस प्रकार से ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं इनको बताया गया भीम को कि केवल एक एकादशी के पालन से ही वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही एकादशी करें और बाकी एकादशी ना करें, ये भीम के लिए कहा गया था। तो भगवत प्राप्ति के लिए हमको पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमारे लिए सभी एकादशियां बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर व्यासदेव जी कहते हैं कि उनको शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा था कि जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके भगवान कृष्ण की शरण में जाएगा और निर्जला एकादशी का पालन करेगा, वो भगवान को बड़ा प्रिय हो जाएगा और निश्चित सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। आएगी फिर ना कभी दुख की कोई शाम है।
दिन उनको दे देते दर्शन घनश्याम ग्यारस के दिन जो जपता राधा राधा नाम है एक दिन उनको दे देते दर्शन घनश्याम एक दिन उनको दे देते दर्शन घनश्याम व्यक्ति स्वयं, परिवार और समाज। एक रेखा छोटी है, दूसरे उससे थोड़ी बड़ी है और तीसरे उससे भी बड़ी है। तो हमारे जीवन का वर्गीकरण कैसे होना चाहिए? जो हमारी छोटी रेखा है उसके लिए हमारा चिंतन होना चाहिए कि जो मुझसे बड़ी रेखा है उसको छोटी करके मुझे आगे नहीं निकलना है, उसका सम्मान रखना है। और जो बीच में रेखा है वो ये सोचे कि जो मुझसे नीचे बड़ी रेखा है उसका सम्मान करते हुए मुझे अपने ही स्थान पर रहकर परम पुरुषार्थ करते हुए मुझे परिणाम की ओर जाना है। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ बिना का धनोपार्जन, साथ साथ में फुर्सत के समय में आलोचना, और तीसरी बात रोगी का रोगग्रस्त हो जाना, इस शरीर का रोगग्रस्त हो जाना, ये तीनों भाइयों के साथ ईर्ष्या और स्पर्धा, ये 5 संतानें हैं। अब इनके माता पिता कौन हैं? इनके माता पिता का नाम है अहंकार और ममता। ये इनके माता पिता हैं। अहंकार ही व्यक्ति को परनिंदा करने में या किसी के स्पर्धा में जुड़ने में या किसी से ईर्ष्या करने में या निरंतर प्रमादी होते हुए पुरुषार्थ किए बिना परिणाम की प्राप्ति का अपेक्षा रखने की, ये सब दुर्गुण कहां से आते हैं? ये सभी दुर्गुण आते हैं अहंकार में से। और प्राप्त करने के बाद फिर तो ऐसी ममता जगती है कि ये मेरा हुआ सो हुआ, अब ये पदार्थ, ये वस्तु, ये परिस्थिति, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये मान, ये धन, ये संपत्ति भले मेरा न हो तो न हो, लेकिन और किसी का तो कभी न हो। इस प्रकार के दुर्भाव मन में जग जाते हैं। और ऐसी जब मानसिक परिस्थिति हमारे व्यवहारिक जीवन में जब हो जाती है, तब उस समय में उस व्यवहारिक स्थिति में होते हुए हमको संतुलन किस बात से बन पाता है? संतुलन बन पाता है केवल और केवल हमारे वैष्णवी आचरणों से। जब तक हमारे जीवन में अहंकार ममता, इन दोनों वस्तुओं का, इन दोनों परिस्थितियों का जब तक रूपांतरण नहीं होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन की जो कला है वही तो पुष्टि भक्ति की एक विशेष विलक्षणता है कि जैसे हम अहंकार को दीनता में कैसे रूपांतरित करें। अभिमान न हो, लेकिन स्वाभिमान तो हमारे प्रभु का, हमारे गुरु का, हमारे मार्ग के भगवदियों का, हमारे मार्ग का सिद्धांत का अप्रतिम स्वाभिमान हमारा हो। अभिमान न। अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु पापानुवर्तेषु। कृष्णाष्टमी में श्री वल्लभ ने ये वचन कहे कि आने वाली परिस्थितियों में इन सभी चीजों से ग्रस्त होकर अहमता ममतात्मक जगत से इस प्रकार से तीनों पुत्र और दोनों पुत्रियां किस प्रकार से मनुष्य के शरीर को, जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देंगी। और ऐसी परिस्थिति में हमारा गंतव्य क्या होना चाहिए? कृष्ण एव गतिर् मम। कृष्ण एव गतिर् मम, यही हमारे जीवन का परम चरम अंतिम गंतव्य होना चाहिए। और उस गंतव्य की प्राप्ति के लिए ही हमारे यहां इस प्रकार के जिस काल प्रवाह में हम जी रहे हैं, उस काल में, उन परिस्थितियों में, बदलते वातावरण में, बदलती मानसिकताओं में, बदलते नए नए रोगों के संक्रमण में हम किस प्रकार से
अपने मन बुद्धि चित्त को स्थिर करते हुए प्रभु के प्रिय पात्र बन सकें, उसकी जो कला है उस कला को ही हमारे यहाँ पुष्टि भक्ति मार्ग के सिद्धांत कहे हैं। उस कला को ही हमने पुष्टि भक्ति का स्वरूप प्रदान किया है। वो कला ही तो पुष्टि भक्ति है, जहां इन सब परिस्थितियों में रहते हुए भी हम जल कमलवत रह सके, सदगृहस्थ होते हुए परिवार समाज के बीच में रहते हुए हम अपने प्रभु को संपूर्ण तत्सुख का विचार करते हुए हम उनके प्रिय पात्र बन सकें। ऐसी पात्रता का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि इन तीनों पुत्र, इन दोनों पुत्रियों का जो तालमेल है वो हम समझें। आज निर्जला एकादशी के दिन हम श्री ठाकुर जी से यही विनती करें कि जैसे जल पिए बिना हमारे मन का, हमारे देह को ताप लगता है, ऐसे ही प्रभु जब जब आपका सत्संग न हो, आपका स्मरण न हो, आपकी सेवा न हो, आपका कीर्तन न हो, तब तक हमारे मन बुद्धि और चित्त में भी ऐसी ही एक प्यास उठे, ऐसी एक पिपासा हमारे मन में उठे कि जिसके कारण से एक ऐसी तृष्णा का जन्म हो कि प्रभु आप जल्दी से अपने इस परम रसरूप स्वरूप का दान आप हमारे मन बुद्धि को करावें। जैसे जल के बिना देह तड़पता है, ऐसे ही हमारी मन बुद्धि चित्त ये सभी आपके मिलन के लिए तड़पें, ऐसा एक विशेष अधिकार प्राप्त हो। इसी भावना के साथ सत्संग को विराम दे रहा हूं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। रस की रात आई तुम शाम को मना लो, रस की रात आई तुम शाम को मना लो। देता है सबको बाबा शाम, देता है सबको बाबा, चाहे तो आजमा लो। रस की रात आई तुम शाम को मना लो, रस की रात आई तुम शाम को मना लो। रस की रात पावन और शाम के मन भावन, रस की रात पावन और शाम के मन भावन। प्यारे भजन सुनाओ, गुण शाम के तुम गाओ। आएगा कान्हा लीले चढ़ प्रेम से बुला लो, आएगा कान्हा लीले चढ़ प्रेम से बुला लो। देता है सबको बाबा शाम, देता है सबको बाबा, चाहे तो आजमा लो। रस की रात आई तुम शाम को मना लो, रस की रात आई तुम शाम को मना लो। दर्दे जुदाई का गम तुम शाम को सुनाना, दर्दे जुदाई का गम तुम शाम को सुनाना। चरणों में बैठ करके तुम शीश को झुकाना। सुन लेगा शाम दिल की तुम भाव से सुना लो, सुन लेगा शाम दिल की तुम भाव से सुना लो। देता है सबको बाबा शाम, देता है सबको बाबा।
हो जाएगा तुम्हारा, अपना इसे बना लो, देता है सबको बाबा।